Very good afternoon to everyone who is watching this video. I hope that all of you might have got in your schools. You must have been told about your career, about the streams, right? आपके स्कूल के अंदर I think everybody must have been told that आपका ये this will be your stream. आपको इस stream से ये मिलेगा, right? Okay, so first of all, welcome to this special counseling stream. This counseling I take every year when you are all nearing to your pre-boards. And the reason is because you are now going to step into the pre-board. उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि why there is so much of pressure on you, yeah, what kind of pressure you need to take and what kind of pressure you need to leave. तो सबसे पहले तो बच्चा हम लोग इस बात को लेकर चलते हैं कि what is the meaning of counseling? Is it something what I'm going to tell you something about money making? No, not at all. It's not about money making. It is nothing to relate it to something. It is ki as a teacher, as your teacher, because your teacher is also a counselor. So as a teacher, I take this responsibility that you should understand what are your strengths and weakness. क्योंकि अब जो आपका प्री बोर्ड होगा और प्री बोर्ड के बाद आपका जो रिजल्ट है फिर बोर्ड्स है, उसके ही आधार पर आप अपनी लाइफ को डिसाइड करने वाले हो. और आपने सोच लेना है कि अगर मेरे 90% है तो मैं साइंस करके मैं किसी मतलब कि ऊंचे उसके में पहुंचने वाला हूँ. एंड इफ आई एम मैंने तो कुछ किया नहीं था, मेरा लक साथ नहीं था, मैंने उस वक्त में पढ़ाई नहीं की थी और इसीलिए मुझे कॉमर्स लेना पड़ रहा है या ह्यूमैनिटीज लेना पड़ रहा है, तो मैं चलो ये कर लूंगा. That is where we all are wrong. Because जो आप अभी प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे या बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे, that is only one single milestone. That's not your life. Whereas आपका जो करियर डेवलपमेंट होता है, आपकी जो लाइफ आगे आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करोगे, whatever you are going to be in your life is a lifelong process. This will never be reversible. Let me tell my own example कि I was a very good student with God's grace. I don't need to tell you कि हाँ भाई कितनी good हूँ, लेकिन I was a very good student and I could easily get science. My family circumstances was that कि my parents were not in favor of me to take science. मेरा एक ही ड्रीम था to become a doctor, wear a white coat. मेरे दिमाग में था, I'm not telling that doctors are very good or something like that. मेरे दिमाग में था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, I'll be wearing a चश्मा, I'll be wearing a white coat. And since 6th standard मेरे दिमाग में था कि मुझे बायोलॉजी के सारे कंसेप्ट्स आने चाहिए, मुझे फिजिक्स के सारे कंसेप्ट्स आने चाहिए. And I used to buy special books for them, magazines on the platform. और मतलब कि that was actually the milestones for the entrance exams. और मैं उसे क्लियर करती रहती थी और मुझे पूरा विश्वास था कि आई एम गोइंग टू गेट, और मेरी बायो बहुत अच्छी भी थी. लेकिन as luck said, my parents did not allow me because हमारा उस टाइम का जो सिस्टम जो भी था, and I was supposed to take commerce. I was very good in commerce also. I was very good in commerce. ऐसा नहीं है, जिस दिन मेरे पेरेंट्स ने कहा साइंस नहीं, उस दिन मैंने पीछे नहीं मुड़कर देखा. But ultimately what I am is a teacher, and that too I'm teaching English, business studies or political science. तो what is this कि मैं साइंस लेना चाहती थी, मैंने कॉमर्स लिया और मैं मतलब कि पहुंच गई एक टीचिंग लाइन में. And what I am teaching is my career. So this is where we actually do not understand. तो अब आप लोग जो क्लास 10th में हो, आप लोगों के साथ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो मैं जनरल बता रही हूँ, you all have
चूजिंग स्ट्रीम आपको करना है, एक मतलब हमारे दिमाग में बात बैठी होती है कि अगर मैंने साइंस नहीं लिया तो मुझे पूरी दुनिया जो है वो मुझे बुद्धू कहेगी। तो पहले तो बेटा अपने दिमाग से ऐसी बात हटा देना कि द टॉपर्स आर ओनली साइंस, नो नॉट एट ऑल, द टॉपर्स आर आल्सो फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, द लॉयर्स आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, द आईएएस ऑफिसर्स जिनके लिए सपना सोचना भी मुश्किल है, दे आर ऑल फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड. So no stream is going to tell you that you are बुद्धू or you are intelligent. ये आपके दिमाग में अगर ये बात है, अगर ये कीड़ा आपके दिमाग में कहीं चल रहा है कि मैं साइंस लूंगा तो ही मैं इंटेलिजेंट माना जाऊंगा, इसलिए मुझे मैथ्स और साइंस को अच्छे से ही कर लेना है, तो देयर यू वुड बी रॉन्ग. बिकॉज चूजिंग द स्ट्रीम इज नॉट डिफिकल्ट. आज आप थोड़ी मेहनत करोगे, आपको जो स्ट्रीम चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन उसको आपने कंटिन्यू करना है 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में. उससे रिलेटेड आपको डेफिनेटली डिफरेंट कोर्सेज पता होने चाहिए, व्हाट आर द कॉलेजेस वो पता होने चाहिए. दैट इज वेयर एक्चुअली हमारा स्ट्रीम चूज करना होता है. बिकॉज चूजिंग अ स्ट्रीम इज हमारा पूरा फैमिली इन्वॉल्व है. कल को हमारे when if you are choosing a stream you should also be aware कि अगर मेरे को ये वाला कॉलेज नहीं मिलेगा तो मैं ऑप्शन में क्या करूंगा. There might be people who might tell you, oh कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तू चला जा, डॉक्टर बना, कोई बात नहीं, तेरे को एजुकेशन लोन मिल जाएगा. So are you ready to pay 80 lakh rupees as loan in a private college? पहले वो सोचिए. तो you need to understand. Then मेरा फ्रेंड तो साइंस ले रहा, मुझे तो साइंस ही लेना, मेरा फ्रेंड कॉमर्स ले रहा, मुझे कॉमर्स ही लेना है. बच्चे, इफ योर फ्रेंड्स आर ट्रू, दे आर गोइंग टू बी विद यू समवेयर और द अदर. आप उनके साथ जाकर एक क्लास के अंदर बैठ जाओगे तो ही वो आपके दोस्त नहीं है. देन इन सम फैमिलीज ऑल्सो, नॉट टू से बट इट ऑल्सो इज देयर, लाइक आई टोल्ड यू. नाउ आपने क्या सोचा ये आपके ऊपर है. Why do you not get it? Carelessness. अभी इस सब्जेक्ट को मैं ज्यादा नहीं करूंगा, मैं इस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दूंगा. I'm not mentioning any subject because every child has different perspective towards subjects. किसी के लिए मैथ्स बहुत मतलब कि इंटरेस्टिंग होता है, तो किसी के लिए सोशल साइंस होता है. तो नो मैथ्स एंड नो सोशल साइंस. If you have 4 subjects, इंग्लिश को छोड़ देना, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज. आपको मैथ्स पसंद है, साइंस पसंद है, सोशल साइंस पसंद है, कंप्यूटर साइंस पसंद है, यू नीड टू पुट इक्वल, और मे बी जिसमें मेरा आपका वीकनेस ज्यादा उसमें ज्यादा, और जिसमें आपका स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा कम. सेकेंडली, 1, 2, 3 किसी में आपके मार्क्स ज्यादा आ गए, ओ I am very intelligent. I can easily, मुझे तो बुक खोलने की जरूरत ही नहीं है. बच्चा, sometimes as a teacher we need to open the books. पिछले 3 साल there were so many chapters which were deleted. हमने भी एक बार उसको read through किया था. So this is very important that आप अपना confidence and over confidence and under confidence को define करो. I know everything, I don't know anything, दोनों चीजों को मत लेकर आओ. Nobody can be 100%. An imbalanced study pattern जो हमेशा रहता है. You don't have the timetable. You don't have the what you call as a proper system. पढ़ते हो, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप लोग नहीं पढ़ते हो, डेफिनेटली 10th I know that every 10th standard or parents be they put lots of energy for this. I know this 100%. There is no second thought for that. But how do you balance it? पढ़ने में और पेपर को करने में there are 2 different things. Yesterday I was watching a video. And that video was मतलब about something, you know, शॉल को डिफरेंट तरीके से रैप करने का. मैंने उसे 2 बार देखा और मुझे बड़े अच्छे से आ गया, यहाँ मुझे समझ आ गया. मैंने उस वीडियो को सेव नहीं किया. आज जब मैं खुद उस चीज को करने के लिए 2 बार कोशिश कर रही थी तो आई वॉज नॉट एबल टू. मैंने उसको, उसने जैसे वो
the girl had put the rubber band. मैंने भी rubber band डाल के उसको गोल गोल घुमाया, मुझसे कुछ नहीं हुआ. So that is where the difference is. पढ़ना जरूरी नहीं है, when you are actually applying it वो जरूरी होता है. So are you practicing in that way? Because when I'm taking the test, I'm not finding that. मुझे वो चीज नहीं नजर आ रही है जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ. तो वो आपका डिफरेंस है, imbalance. So now let us come to this main one. All of you know Indian system right now says you have 3 streams: science, humanities, and commerce. And anyone who is getting 75 to 85% normally in the schools, they are given science. Sometimes if your maths marks is less, so science without, commerce without maths. And agar acha hai to commerce with maths. Maths maybe right now you are having 2 maths. One is the standard maths and the second one is the basic maths. तो अगर आपका अब आता है हमारे कॉमर्स में क्या क्या है. The highest one is chartered accountancy, cost accountancy, then CMA, which is costing. And इनको करने के लिए you don't, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास मैथ्स होना चाहिए. मैथ should be there till 10th standard. After 12th you need to go for an entrance called as CPT, the proficiency test, which is somewhat okay. लेकिन उसके बाद अगर आपको CA, CS, CMA में से कुछ भी करना हो तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपकी दाढ़ी आ रही है, आपकी मूछें आ रही हैं, आपके बाल लंबे हो गए हैं, या फिर आपके जो मतलब की नेल्स है वो फाइल नहीं हुआ, ये सब भूल जाना पड़ेगा. You need to study 18 hours a day to become a chartered accountant, CS or CMA. Because ये आपके colleges नहीं होते हैं, ये आपके institutes होते हैं जिनसे आपको you have to register yourselves with the institute and आपको private coaching लेनी पड़ती है एक एक group के लिए, and there are 9 groups. और एक ग्रुप में जितने सब्जेक्ट्स हैं आपको एक ही बार में क्लियर करना पड़ता है. अगर आपका एक सब्जेक्ट भी रह गया तो पूरा ग्रुप दोबारा करना पड़ेगा. And it takes around 4 to 5 years for a person to complete this, अगर वो बच्चा बहुत intelligent है तो. Secondly, after completing graduation, 90% students go for MBA, Masters in Business Administration. MBA करने के लिए आपको कुछ जरूरी नहीं है कि आपको कॉमर्स में होना पड़ेगा. आप आर्ट्स में हो, आप साइंस में हो, आप किसी भी स्ट्रीम में हो, you can do MBA. And today you have Masters in Business Administration in more than 100 different areas. पहले होता था कंप्यूटर्स है, या फिर आपका IT है, या फिर ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, पहले यही होता था. Right now you have 101. आप कोई एक नाम ले लो. मुझे रिस्क मैनेजमेंट में करना है, आपको मिलेगा. कॉर्पोरेट सेक्टर में करना, आपको मिलेगा. हॉस्पिटैलिटी में करना, आपको मिलेगा. So you are from any background, you can go for MBA. Then corporate lawyers, BBA LLB, यानी कि business administration के साथ law. Those who are working with the multinational companies, उनके internal law. Then economist, the one of the सबसे ज्यादा पैसे वाला लेकिन सबसे डिफिकल्ट. If you want to pursue economy or actuarial science or statistics, आपके पास कॉमर्स के साथ बेसिक मैथ्स का होना जरूरी है, स्टैंडर्ड मैथ्स का होना जरूरी है. बेसिक इसमें नहीं जाता. So if you are any time planning that you want to become an economist, so you should always say that you should take the standard maths. अभी मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुआ था. She took basic maths, फिर मेरे से वो काउंसलिंग लिया था, तो I told her, then she changed it. मतलब कि luckily her school allowed her. Actuarial science, you can look for the videos on the WhatsApp on this. It's a very beautiful one. Insurance sector, finance sector में आता है. Accountant,
फाइनेंस मैनेजर्स, प्लानर्स, ऑडिटर्स, ये सब आपकी वो फील्ड है, और इनके अंदर अलग अलग छोटे 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 बहुत सारे फील्ड्स हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि इफ यू हैव टेकन कॉमर्स तो आपको सीधा टपकना सीए बनना है। नो, यू हैव द वे, आप छोटे छोटे कोर्सेज कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो, यू हैव मेनी, देन आपके स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड आपके कोर्सेज है, यू कैन गो फॉर। नाउ कम्स ह्यूमैनिटीज। सब लोग ऐसे करते हैं छी, बट आई से, मुझे कोई बच्चा बोलता ना आई हैव टेकन ह्यूमैनिटीज एंड दैट टू विद गुड मार्क्स, तो मैं ऐसे कहती हूँ थम्स अप, because all your IAS officers, IPS officers, all your मतलब कि जितने आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो ह्यूमैनिटीज से ही होंगे। इवन अगर आपने कॉमर्स लेके भी अगर आप IAS दे रहे हो ना, तो आपको वापस 9th 10th 11th 12th का पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू वांट टू बिकम टीचर, प्रोफेसर्स, हिस्टोरियंस, तो आपको उस फील्ड से रिलेट में आपको करना पड़ेगा। लाइक इंग्लिश है तो BA इंग्लिश, इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, you have to go for public administration. Then there is one more, hotel management. It's a very different field. Only those who are very particular about hotel industries, they can go for hotel management, क्योंकि ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, करने में बहुत कुछ है। You have to work like a waiter also, you have to work like a receptionist also, and then you become something in the managerial category. Then you have interior designing, fashion designing. This you can do even with the commerce. Social work, public health, सबसे ज्यादा अगेन मनी भी और बहुत फेम भी। WHO में जो लोग काम करते हैं उनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ, ह्यूमैनिटी से भी होता है, साइंस से भी होता है। देन BBA. I don't know how many of you are aware that IIT के अंदर भी ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज हैं। Is anyone aware? हमारे हिसाब से IIT में सिर्फ साइंस होता है, सिर्फ इंजीनियरिंग होता है ना? But no, IIT is having a specialized course for this humanities. This is a 5-year integrated course which is complete, which is done, which is given by IIT. But if definitely उसका जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसकी जो एंट्रेंस है वो उतना ही डिफिकल्ट जितना कि आपका और किसी का है। Then one of the other course which I haven't mentioned here is psychology. Psychology girls बहुत पसंद करती हैं since it is about the human behavior. Psychology, child psychology, criminal psychology, human psychology. आजकल क्या है, corporate psychology. One of my student right now, she has completed her masters from this London, MIT से यहाँ से थी, तो she is into corporate psychology, and today because of the mental health issues, socio मतलब कि emotional health issues, ये psychology has become a vast field. So if you are from humanities or from science background with psychology, you can go. हाँ, एक है कि आप साइकियाट्रिस्ट तभी बन सकते हो जब आपके पास PCB है, यानी कि becoming a doctor. And psychologist, like we all are psychologists, we have done career counseling है तो हमारा psychology course है, and even in our B.Ed we have psychology. So that is one where we are understanding the mind of others and working accordingly. तो these two are different. लेकिन अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में या फिर आप जनरल साइकोलॉजी में जाना चाहते हैं, आजकल क्या स्कूल्स के अंदर काउंसलर्स, स्कूल के अंदर साइकोलॉजी, these are very important, so you can definitely go for it. Then you have food and nutrition, which is again common for humanities and science. Now come to science, which for many people it is, wow, I'm from science. और 5 साल बाद सबसे ज्यादा मीम्स होते हैं कि भाई साइंस लेकर हमने क्या उखाड़ा, बिकॉज ये हमारे लिए वो दूर का रिश्तेदार है
जो बहुत अमीर है, पास में जाने के बाद पता लगता है उसके घर में चद्दर भी नहीं। तो प्लीज डू नॉट बी इन अ मिथ. Yes, if you want to, if you have kept in your mind मुझे इंजीनियर बनना है, बट इंजीनियर बनना तो कौन सा इंजीनियर बनना है? इंजीनियर तो सबको ही है. Electronics is also engineering, telecommunication is engineering, automobile is engineering, mechanical is engineering, computer science में engineering है. तो into what field you want to become, and for that if you have taken PCM, physics chemistry maths, if you have taken CS तो आपको जो है कंप्यूटर वाला भी मिल जाएगा. Then you have to apply for JEE. जेई अगर आप कर लेते हो क्लियर, मतलब पहला प्रिलिमिनरी फिर एडवांस्ड, फिर आपके मार्क्स 12th के, आपके रैंक इन योर व्हाट यू कॉल एज इन योर जेई, उनके टोटल पे आपका परसेंटाइल निकलेगा, एंड देन यू विल बी अलॉटेड द कॉलेज अकॉर्डिंग टू देम, नॉट अकॉर्डिंग टू यू. तो अगर आपको अपने हिसाब से चलना है तो फिर यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्व्स इन दैट वे. Becoming engineer, pilots, doctors. Now, if you want to become doctor, PCB, physics, chemistry, bio, with psychology, with biotech, you can take. And if you have kept in your mind कि मुझे medical से related या फिर मतलब उसी में जाना है, then you don't need to understand. कोई और आपको बोले भाई मैथ्स भी ले ले, अगर तेरे पास, अगर तेरा बायो नहीं होगा तो तू यहाँ पे कूद पड़ना, तो बेटा ये दो नाव पर मत सवार होना जो सबसे ज्यादा लोग सवार होते हैं. कभी तो हाँ नहीं ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं क्यों भाई, दाल नहीं बनेगी तो सब्जी बन जाएगी, सब्जी नहीं बनेगी तो दाल बन जाएगी, वो सही समझ आता है. बट इंजीनियर नहीं बनोगे तो डॉक्टर बन जाओ. इंजीनियरिंग है समथिंग एल्स, डॉक्टर है बिहेविंग विथ ह्यूमंस. ये दो अलग अलग कंसेप्ट को आप साथ में कैसे लेके चल सकते हो? एंड आई हैव लास्ट ईयर आल्सो आई हैड मेनी स्टूडेंट्स, मैम अगर कॉमर्स, मैम ये नहीं होगा तो ये होगा. क्यों नहीं होगा? दिमाग लगाओ ना, होगा. जो बन रहे वो भी आपके जैसा ही इंसान है, वो कोई अलग से किसी अलग प्लैनेट से नहीं आए थे. The only thing everyone must have done is perseverance. तो डॉक्टर बनना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो विथ साइकोलॉजी, और गो फॉर बायोटेक्नोलॉजी अगर आपका स्कूल है तो, क्योंकि डीएवीज में है, डीपीएस में है. देन कीप 2 years अपने ऐसे, आज मम्मी पार्टी पे जा रही है, चलो मैं भी चलता हूँ. आज मम्मी बाहर घूमने जा रही है, मैं भी चलता हूँ. आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, आज मेरा बर्थडे, आज मेरे भाई का बर्थडे, आज मेरे कजिन का बर्थडे, आज कजिन के कजिन का बर्थडे है. तो फिर बेटा फिर डॉक्टर वगैरह मत बनना, पार्टी ऑर्गेनाइजर बन जा. बिल्कुल 100%. आज ये है, आज वो है. आज क्या था, आज मैम हमें कहीं जाना था, कहीं जाना था, कहाँ जाना था? मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, दादा दादी की एनिवर्सरी थी, भैया भाभी की एनिवर्सरी थी, तो फिर वही मनाना. Because medical को clear करना, it's not easy. To clear medical, first of all, you need to go for NEET. Now NEET के अंदर आपका, if you are on the top scorers, MBBS, then BDS, then उसके बाद आपके पास BAMS है, that is Ayurveda, then आपके पास BHMS है, that is homeopathy. तो ये आपके पास और भी options है. And if you have something कि मुझे किसी को सर्व करना है, you have physiotherapy. तो you have number of options. लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंजीनियरिंग और डॉक्टर के अंदर डिफरेंस क्या है? इंजीनियरिंग में प्राइवेट कॉलेजेस में भी फीस, नो डाउट इट इज अराउंड 10 लाख 5 to 7 lakhs per annum. लेकिन डॉक्टर में क्या है? प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो इट इज अराउंड 80 lakhs to 1 crore. यानी कि 5 साल का आपको 1 crore देना है. And you are not going to become a doctor only if you have completed MBBS. मैं कोई भी नहीं आएगा. अगर मान लो कि किसी की हड्डी टूटी है तो वो MBBS के पास तो नहीं जाएगा ना, वो तो ऑर्थोपेडिक्स को ढूंढेगा. So to or become an orthopedician, you have to again apply for PG NEET. उसे क्लियर करना भी उतना ही पापड़ बेलना जितना कि आपने अभी बेला था, और उसके बाद 3 साल अपने आप को भूल जाना है. Then you become some doctor, चाहे वो ऑर्थो हो, कार्डियो हो, और वो भी आपकी मर्जी से नहीं मिलेगा. आप अप्लाई करोगे, पहली बार में नहीं मिला, यू हैव टू अप्लाई. बट ये होता है
कि इफ यू आर बिकम MBBS, उसके बाद आप 2-3 साल प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद जब आपको लगता है कि यू आर प्रिपेयर्ड तो आप कभी भी कर सकते हो. दैट्स द ओनली. एंड विद MBBS यू हैव लॉट्स ऑफ डिप्लोमा कोर्सेस जिसको रखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो. बट इफ यू वांट टू बिकम डॉक्टर, इफ यू वांट टू बिकम इंजीनियर, तो ये जो 2 साल आपके वो जो बाबू सोना वाले हिसाब होते हैं ना, उनको आप लोगों ने नहीं करना है. देन इफ यू वांट टू गो फॉर पायलट, NDA, सेम JEE करके आपको उसके अकॉर्डिंग जाना है. देन देयर आर स्टूडेंट्स हु गो फॉर नेवी. मेरा एक स्टूडेंट है कशिश करके, ही इज इन मर्चेंट नेवी. देन एस्ट्रोनॉमर, फिजिक्स करने के बाद. तो ये तो हमारे हैं जो मोटे मोटे सबसे इंपॉर्टेंट वन, जिसको लोग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, और कर भी लेते हैं तो देन दे सफर. बिकॉज हमारे जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल लिमिटेड है. एंड इफ यू आर फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी देन यू नीड टू गो फॉर द हायर रैंक. एंड इफ यू आर फ्रॉम एनी रैंक, जहां एनी मतलब कि ऐसे उसमें जाते हो जो आपको मिलता है, तो टेक द एडवांटेज. देन यू, इफ यू हैव कंप्यूटर प्रोग्रामर, देन डेटा साइंस. आजकल डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज बिकमिंग द न्यू वन. हर जगह पे होता है आजकल. मतलब इवन आई हैड डन वन स्मॉल कोर्स ऑन डेटा एनालिटिक्स. You have, then you can go for scientist. Now scientist का मतलब different fields. आप physics में जाना चाहते हो, chemistry में जाना चाहते हो, bio में जाना चाहते हो, heredity science में जाना चाहते हो, क्योंकि there are number of courses which are related. ये जो bio हम word कह रहे हैं ना, bio से आपके 10 branches निकल के आते हैं. zoology भी आता है उसके अंदर, आपका anthropology भी, मतलब आपके इतने सारे branches हैं. You can go for any one. But that is a too far one. Then some of the students, those who don't get, they even opt for BSc Pharma, B Pharma, जो आपके chemist होते हैं. Then जो आपके pharmaceutical industries है, वहां पर आपको जो है pharmacist की जरूरत होती है, क्योंकि अगर दवाइयां नहीं बनेगी तो बीमारियों का इलाज कैसे होगा. Biotechnology, which is बेसिकली जेनेटिक इंडस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी आने वाले 10 years में सबसे ज्यादा होंगे. यूजिंग बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी टुगेदर. रोबोटिक्स इन इंडिया, इट इज स्टिल नॉट दैट मच. अभी मैं कल या परसों आई वाज लुकिंग एट वन वीडियो. आई डोंट नो इन विच यूनिवर्सिटी इट हैज बीन फर्स्ट टाइम किसी स्कूल के अंदर रोबोटिक्स ने पढ़ाया है. इन अदर कंट्रीज लाइक जापान, अभी मैं बैंकॉक गई थी, आप लोगों को पता भी नहीं होगा, आई वॉज इन बैंकॉक, आई वॉज टीचिंग यू, आई वॉज देयर. वहां पर जो रोड भी साफ करते हैं ना, वो भी रोबोट्स. इन इंडिया स्टिल इट इज अ फार ड्रीम, लेकिन स्टिल यू हैव, क्योंकि 3 साल बाद हो सकता आप में से कई बच्चे बाहर जाने की कोशिश करें. एंड अगर आप में से कोई बच्चे को ग्रेजुएशन में भी मौका मिलता है ना, एज अ काउंसलर आई से चले जाना. यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन. बिकॉज एक बार आप इंडिया से कुछ कर लेते हो ना, तो उसका जो गैप होता है विद अदर कंट्रीज इज डिफिकल्ट. एंड इफ यू आर गेटिंग अ चांस लाइक जर्मनी, कनाडा, US, डोंट वेस्ट. ईस्टर्न साइड पे मत जाना अगर वेस्ट में आपको मिलता है. बिकॉज इन जर्मनी इफ यू आर गोइंग देन यू हैव टू, उनका है, उनका शर्त होता है दैट यू हैव टू, उनके जो जर्मन है उसको आपको क्लियर करना पड़ता है. एंड फ्रांस में भी सेम है कि यू नीड टू क्लियर फ्रेंच. बट इफ यू आर गोइंग टू कैनेडा, इफ यू आर गोइंग टू US, then with English flair you can do it. Then you have dietitians. आजकल तो हर एक इंसान डाइटिशियन है. ये भी खा लेना, इससे पतले हो जाओगे, इतने पुशअप्स कर लेना, ऐसे धक्का दे देना. मुझे तो कई बार वीडियो देखकर लगता है कि घर के दीवारें ऐसे ना खड़ के चले जाए. तो डाइटिशियन, because in the hospitals dietitians, nutritionists are very important. For the, when before pandemic I did not see this much of veterinary science. Today every 10
मतलब कि किलोमीटर्स के रेडियस में यू कैन सी अ वेटनरी साइंस, दैट्स अ वेरी गुड. बट इफ यू लव डॉग्स और एनिमल्स, उनकी स्मेल, उनकी हर चीज को आप बर्दाश्त कर सकते हो, देन यू कैन गो फॉर. Public health is very, 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 very important topic in science as well as in com. मेरी एक स्टूडेंट है निधि, who is in public health with humanities, हमारे ही इंस्टीट्यूट की है, निधि पिल्ले. एंड दूसरी पब्लिक हेल्थ आपका आ जाता है which is masters in public health. You can do it after becoming doctor, after becoming any BSc, और वो आपका पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ को लेता है, और WHO जो है वो ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा देता है. And there are number of opportunities also. Then you have BSc nursing if you are very flair in, मतलब कि, लेकिन उसके लिए भी you have to go for the entrances. Developers, आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं. कंप्यूटर साइंस में you have lots and lots of scopes. Cyber law. तो if you want to go for this, your main agenda should be English, science, maths. लेकिन यहां पर आई वुड लाइक टू से कि सोशल साइंस के मार्क्स को भी स्कूल में देखा जाता है. ओवरऑल को वो लोग देखते हैं. ऐसा नहीं है कि आप सोशल साइंस में 33 लेकर आ रहे हैं, उसमें मतलब लेकर आ रहे हैं. तो दे वुड ऑल्सो सी दैट बैलेंस शुड बी देयर. In humanities, it is English, social science, and any subject. And for commerce, it is English, math, social science, and any one subject. English is common for all. Now comes कि आप इसको कैसे लेना चाहते हो, how you want to. मैंने पहले आपको बता दिया that there should be no distraction. मेरे भाई ने किया था, मेरे लास्ट ईयर आई हैड, मतलब एवरी टाइम वी हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कहते हैं मेरे भाई ने किया था. भाई भाई ने किया था ना, मेरे भी भाई ने किया था. मेरा भाई, मेरे घर में मेरे तीनों कजिन्स, आई डोंट नो, आई डोंट हैव द फोटो आल्सो, दे आर, 2 तो यूएस में है, और वो मुझे कहते रहते हैं. बट ठीक है ना, मेरी फैमिली का सर्कमस्टांसेस यही था कि आई कुड बिकम, मैं तो हैप्पी हूँ कि एटलीस्ट आई एम अ टीचर, एटलीस्ट आई कुड फुलफिल माय ड्रीम्स, आई एम ऑन माय फीट. उनके घर में नहीं था, उनके घर में सब साइंस लेकर सब बन गए. तो डोंट थिंक, आपके भाई के अंदर आपका खून नहीं दौड़ रहा है, आपका भाई आपका खाना नहीं खाता है, आपकी जगह पर वो ब्रश नहीं करता है, तो आप वो जो कर रहा है वो आप नहीं कर सकते. Every family has a circumstance, every family's background has a circumstance. So this you have to understand. पड़ोसी ने कहा, कौन क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा. अगर आप फेलियर हो विथ साइंस तो भी लोगों ने कहना ये बेकार है. एंड अगर आप कुछ भी ना करके थोड़े टाइम बाद अमीर बन गए ना, तो लोगों ने कहना वाह, हमें तो पहले ही पता था. सबको पहले पता होता है, आपको नहीं पता. जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो सबको पता है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे. एंड अगर आप, इफ यू आर नॉट, so success and fail is not your marks, your stream. Success and failure is not your marks and your stream. Success and failure is your aptitude towards life. जो लेता है साइंस लेने के बाद, 12th स्टैंडर्ड में आने के बाद, मेरे पास एक स्टूडेंट था, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम वाज रौनक था, पता नहीं क्या नाम था, कुणाल. ही सेड मैम मुझे तो मतलब उसने 11th स्टैंडर्ड रिपीट किया और उसके बाद 12th स्टैंडर्ड में आके कहता है मैम मेरे को तो बीबीए करना है. एंड बिलीव मी, उसने बीबीए करके वो अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा है. तो मुझे समझ नहीं आया था कि 2 साल कॉमर्स, मतलब कि सारे टीचर्स का दिमाग खाया, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स की ट्यूशन लगाई, इतना पैसा स्कूल में भी दिया, इतना पैसा उसने ट्यूशन में भी दिया, उसके बाद वो बीबीए पहुंच गया आईपी के अंदर, तो क्या फायदा हुआ. एंड 10th का मैथ्स जो आपको टीचर्स कूट कूट कर, मसाले की तरह कूट कूट कर जो करवाते हैं ना, उसको मैथ्स नहीं कहते हैं, उसको बच्चों का खेल कहते हैं. क्योंकि 10th के बाद हर दूसरा मेरा स्टूडेंट जो है वो ट्यूशन पढ़ा रहा होता है दूसरे बच्चे. तो 10th के मैथ्स में अगर आपके 90% आ गए ना, तो हवा में मत उड़ने जरा शुरू हो जाना. 10th का मैथ्स सिर्फ बेबी स्टेप. 11th एंड 12th का जो मैथ्स है ना, वो अगर आपके बालों को खड़ा ना कर दे तो शर्त लगा के मुझसे वापस मांगो. अगर आपके बाल खड़े ना हो जाए तो बताओ. तो जो आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, ये जो इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाती हूँ ना, ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ मैं आपको गाना सुनाती हूँ.
एक्चुअल इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स तो आपके 12th और 11th में आता है। जब बच्चे कहते हैं मैम, अभी तक मेरे बच्चे कह रहे हैं मैम पेपर पूरा नहीं हुआ था, तो ये मत समझ के चलना कि अभी मेरे को तो भैया ने कूटा था अच्छे से, तो मैं तो ऐसा कूटा कि अंदर ब्लड के अंदर भी जैसे ही मैथ की क्वेश्चन निकलता है तो मैं आंसर लिख देता हूँ। तो बेटा उससे कुछ नहीं होगा। 11th and 12th is something different. So don't go in with this myth, I got 90%, so I should take science. Take science, commerce और humanities अगर आपका aptitude है। आपकी फैमिली से बात करो, योर पेरेंट्स माइट बी देयर, योर पेरेंट्स कैन टॉक टू मी, दे कैन ऑल्सो कि किस कॉलेज में कितने परसेंटेज लगते हैं, व्हाट आर द फीस इन द प्राइवेट सेक्टर्स, आर योर पेरेंट्स अलाउइंग यू टू गो आउट ऑफ दिल्ली। दिल्ली के अंदर साइंस के कॉलेजेस, आपके इंजीनियरिंग के, एक आपका है what you call as DTU, Delhi Technological University, then you have GGPI, that is आपका गुरुकुल IP University, and then you have one or two, but आपके पास colleges less है। Are you ready? ये सारी चीजों को आपके दिमाग में होना चाहिए। लेने के बाद नहीं करोगे क्या फायदा होगा? देन अभी तो मुझे साइंस लेना है, मुझे तो पता है मैम तो पागल है, मैंने तो साइंस लेना, मैं तो सिर्फ मैथ्स एंड साइंस पढ़ूंगा। बेटा स्कूल वाले मैथ्स एंड साइंस को नहीं ले रहे हैं, आपके एप्टीट्यूड को देखते हैं। आई हैव स्कोर्ड वेरी वेल, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड आई नीड टू गो फॉर कोचिंग, इसलिए मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। कई स्कूल्स हैं, कई आजकल क्या है, नारायणा वगैरह आर गिविंग विद द डमी स्कूल्स। डमी स्कूल का मतलब क्या होता है? अगर आपने नारायणा में, विद्या मंदिर वगैरह में लिया है, नारायणा ही दे रहा है, दे विल टेक यू आउट फ्रॉम योर रेगुलर स्कूल, वो लोग प्राइवेट के थ्रू आपका करवा देते हैं, एंड दे फोकस ऑन द कोचिंग ओनली। सोच समझ के लेना। Many of my students last year also, one of the child has gone to Kota. तो अगर आपको जाना है, अगर आपको, देखिए मैं आराम से आपको कह सकती हूँ, टिल 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी पे फोकस करिए एंड टेक अ ब्रेक, एंड एक साल पूरी तैयारी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमिंग तन्वी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको एक साल लेना है, ड्रॉप लेना है, लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने अभी ड्रॉप ले भी लिया तो कोई आपको कुछ नहीं करेगा, बाद में आपको जरूर प्रॉब्लम आएगी अगर आपने क्लियर नहीं किया तो। एंड देन ऑल्सो अंडरस्टैंड, क्लास 10th इज माइलस्टोन, 11th and 12th इज प्री यूनिवर्सिटी, एंड टू अपीयर फॉर एनी, आज की डेट पर आप बीकॉम भी करना है, सीयूईटी देना पड़ेगा, बीए भी करना है, सीयूईटी देना पड़ेगा, बीए एलएलबी करना है, एंट्रेंस देना पड़ेगा, आपको बीबीए करना है, एंट्रेंस देना पड़ेगा, इंजीनियरिंग करना है, जेई देना पड़ेगा, फैशन डिजाइनिंग करना है तो एंट्रेंस देना पड़ेगा, मेडिकल करना है तो नीट देना पड़ेगा। So all the entrances are there which are very tough and need rigorous practice. अगर आपको लगता है ये लेने के बाद बुद्धू बच्चा ही ह्यूमैनिटीज लेता है, इंटेलिजेंट ये लेता है, या ये करने के बाद पहले ये देखिए कि कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन देगी। प्राइवेट है पर उनकी फीस बहुत 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 ज्यादा है। कंपैरेटिवली आप एमएटी से बीए करते हो तो आपका 3 साल की फीस है 4 लाख, एंड इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम डीयू इट इज हार्डली 20,000 या 30,000। सोचो। Therefore, you need to think wisely. जैसे कहते हैं ना, don't be penny wise and pound foolish. तो अभी मैंने जो आप लोगों को, आज मैंने क्यों आप लोगों को बुलाया था on this special session is that I feel many of the students are taking things on a very lighter ground. Now there is a query that can I take non-medical with any percentage? No. Medical अगर आपको लेना है तो यू हैव टू गेट फेयर मार्क्स इन मैथ्स, सॉरी साइंस एज वेल एज एसएसटी, एंड 80 प्लस में द टीचर्स गिव पीसीबी फॉर मेडिकल, एंड फॉर नॉन मेडिकल यू नीड 85 प्लस, दैट मीन्स पीसीएम लेना हो तो, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर कॉमर्स देन अगेन 80 to 75 to 80%, दैट डिपेंड्स, क्योंकि इंटरनल में कई बार टीचर्स कम में भी दे देते,
डिपेंडिंग कि अगर बच्चा बहुत अच्छा है, आई नो दिस चाइल्ड इज वेरी गुड बट अनफॉर्चुनेटली इसके बोर्ड में मार्क्स कम आ गए, आई कैन गिव. So that depends on the school's internal policies. But if you want to go for medical 80 to 90 and non-medical है यानी कि PCM है तो 85 प्लस तो आपको लेना ही पड़ेगा. साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, ये तीनों को लेकर चलना है आपको. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये सारी चीजों को मुझे कैसे स्ट्रीम को चूज करना है. Number of colleges, number of, and beta, please, one thing I would definitely tell each one of you, all the parents, everyone who is present, that today definitely there are number of short courses also, which can enhance your personality, enhance your professional skills. So don't think that मैं ये नहीं करूंगा तो ऐसा नहीं होगा, मैं ये करूंगा तो ही होगा. Definitely keep your aims high. जैसे हम कहते हैं ना कि aim for the moon, at least if you fall you less you will land on the stars. तो हमेशा सोचिए अच्छा सा, जो भी आपको करना है करिए, बट डोंट थिंक कि ये वाला जो सब्जेक्ट है इसको मुझे स्टेप मदरली ट्रीटमेंट. एक बच्चे का ओवरऑल देखा जाएगा, बच्चा ओवरऑल कितना है 85%, ओके, एंड देन उसका निकाला जाता है पीसीएम में कितना है, उसका नाम क्या, अगर सोशल साइंस के साथ कितना है, और देन दे अंडरस्टैंड. लेकिन एक माइनस पॉइंट आपको मैं बताना चाहती हूँ जो शायद आपके स्कूल्स में नहीं बताते हैं. एंड एज अ टीचर, बिकॉज आई टीच ऑल द 3 स्ट्रीम्स, इंग्लिश में सबके लिए कॉमन है, बिजनेस स्टडीज आई टीच फॉर कॉमर्स एंड पॉलिटिकल साइंस आई टीच फॉर ह्यूमैनिटीज. तो एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, हमारे स्कूल के सिस्टम में जिन बच्चों के मार्क्स कम होते हैं उनको ह्यूमैनिटीज पकड़ा देते, लेकिन आपको मैं बताऊं उतना ही वो गलत करते हैं, बिकॉज हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस आर सब्जेक्ट्स विच रिक्वायर 200% डीप नॉलेज. आपको जो है ना पानी की बाल्टी में अंदर घुस जाना पड़ता है, जो जैसा लिखा हुआ आपको पूरा का पूरा आपको लर्न करना पड़ता है. दुनिया में वर्ल्ड में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या हुआ था उसको भी देखना पड़ता है, इंडिया में क्या हुआ था उसको भी देखना पड़ता है. सो इट इज नॉट, मतलब जो पॉलिटिकल साइंस हम अभी पढ़ रहे हैं दैट्स ओनली अन ग्लिम्स की व्हाट इज डेमोक्रेसी, लेकिन जो 11th एंड 12th का है ना वो बिल्कुल अलग है, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है. मुझे पर्सनली आई लाइक 12th स्टैंडर्ड्स पॉलिटिकल साइंस टू मच. लेकिन अगर आपको लगता है मैं लर्न नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को एसएसटी बिल्कुल नहीं पसंद है, छी बहुत ही गंदा सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन अगर आपको एसएसटी नहीं पसंद है और आप अभी कम परफॉर्म कर रहे हो, भगवान ना करे अगर आपके मार्क्स कम आए ना तो स्कूल वाले आपको जिंदगी भर के लिए पकड़ा देंगे. ये एक रियलिटी है विच टीचर्स डोंट टेल. भाई आपकी 40% है मैम, हम इसको साइंस कैसे दे देंगे, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि बच्चे को एसएसटी तो समझ ही नहीं आ रही थी, एसएसटी तो उसको लिखना ही नहीं आ रहा था, एसएसटी में तो उसके बॉर्डर लाइन है. और वो बच्चा, फिर प्रॉब्लम क्या आती है कि फिर वो बच्चा घसीटता ही है, एंड देन हम लोग कहते हैं ह्यूमैनिटीज गंदा है. दिस इज वेयर, एंड स्कूल्स डोंट टेल दैट 40 स्टूडेंट्स में से 25 स्टूडेंट्स फेल होते हैं 11th स्टैंडर्ड में, 25. और जो 25 फेल होते हैं उनमें से 5 होते हैं जिनको कंपार्टमेंट मिल जाती है, बाकियों को रोक लिया जाता है. 11th जितना आसान आपको 10th लगेगा ना बोर्ड के बाद, उतना ही 10 गुना बुरा होगा आपका 11th. और बिलीव मी 40 में से 25 स्टूडेंट्स आर फेल्ड, क्योंकि स्कूल वाले अपना रिजल्ट नहीं खराब करेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या समझ आया था क्या नहीं समझ आया था. आपको ऑर्गेनिक नहीं समझ आया, भाड़ में जाओ. सो दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ये सब मतलब मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ जो आपको शायद कोई और नहीं बताएगा. इफ यू आर टेकिंग साइंस एनी सब्जेक्ट, डेफिनेटली 11th में अगर आपके अभी 90% आ रहे हैं समझ लीजिए, और अगर आपके 11th में 70% भी आए ना तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट. बिलीव मी 70 भी नहीं आते किसी के, बिल्कुल घसीट घसीट कर हर बार रेड लाइन रख के बच्चे पास होते हैं, एंड 40 में से 25 स्टूडेंट्स तो फेल हो जाते हैं. तो नाउ इट इज योर टर्न.
भाई अब मैम ने बता दिया कि 11th में इतनी हमारे लिए डिफिकल्टीज आएंगी, देन 11th पार होने के बाद 12th थोड़ा आसान रहेगा. क्यों? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड द बेसिक्स. But then you have to build, मतलब कि understand what are the universities, what are the courses, what are your family's expectations, their priorities. उसके बाद आपको हर चीज को लेकर चलना है. So before you take any subject, or even if you have chosen, it's okay. Keep in mind कि you need to work on all the skills. और बच्चा जब आप कॉलेज से बाहर आते हो ना, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि बेटा 11th में कितने मार्क्स थे या 10th में कितने मार्क्स थे. They see how you present yourselves. Do you know how to speak English? जिस इंग्लिश को आज हम लोग है ना घसीटते हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि इंग्लिश को पढ़ने की क्या जरूरत है. कई स्कूल में टीचर्स का मुंह में बोलना होता है इंग्लिश तो आपके ब्लड में है. Then also the students write I did not knew. मैं बार बार बोलती हूँ बेटा डिड के साथ नो आता, लेकिन वो लिखते हैं डिड नॉट न्यू. योर प्रेजेंटेशन मैटर्स. और फिर वही बच्चे जाकर किसी अच्छे से कोचिंग इंस्टीट्यूट में पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंग्लिश कोचिंग लेते हैं. तो फोकस ऑन ऑल. लैंग्वेज आपका इंग्लिश रहेगा हमेशा, बट जो सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे, whether you are having, if you are having basic maths or standard maths, that depends. क्योंकि if you are going for BCom, आपका बेसिक मैथ से कोई प्रॉब्लम नहीं है. BBA है, CA है, CS है, उन सब के लिए बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है. If you are going for PCB or anything related to medical field, then also basic maths is there, okay. But if you are going for engineering, astronomy, या फिर economy, economics, actuarial science, then you need to have standard maths. And your percentage अभी आपका होगा, but आपका 12th में तो you are going to have percentage plus your CU, मतलब whatever your entrance exams are. Don't rush out for any entrance coaching. बेटा कोचिंग वाले जरूर कहेंगे आपको जरूरत है, और मैं भी कहती हूँ जरूरत है, लेकिन जरूरत कब है इस पर थोड़ा ध्यान करिए. बिकॉज कई बार क्या होता है, आई हैड मेनी स्टूडेंट्स, नॉट टू नेम दैट सम ऑफ द स्टूडेंट्स, उनमें क्या था, दे टुक द एडमिशन बट 11th में स्कूल में फेल हो गए. अब कोचिंग का क्या करें बताओ. कोचिंग में 2 लाख रुपए दे दिए थे, वो मनी तो गया है ना. तो 11th को पहले आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए. सी अभी भी मेरे एक स्टूडेंट है, शी टोल्ड मी, लास्ट ईयर की स्टूडेंट है, शी टोल्ड मी कि मैम आई हैव ऑलरेडी टेकन द कोचिंग इन विद्या मंदिर बट नाउ आई एम फीलिंग लॉट्स ऑफ प्रेशर. और उसके बाद क्या होगा, अभी तो आप लोग 10th में ही प्रेशर कुकर समझते हो खुद को. अभी तो बेटा आप प्रेशर कुकर नहीं हो, आप तो उसकी सीटी हो. रियल प्रेशर कुकर तो आपका आएगा 12th के इस टाइम में, जब आपके ऊपर इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंट्रेंस एग्जाम, प्रोजेक्ट, देन स्कूल के अंदर मतलब कि वो, और फिर आप ऐसे करोगे अब मैं सीटी बजा, अब मैं बजा, अब मैं बजा, अब मैं बजा. And this is every year I go for these kinds of problems. So be prepared. अब आपका प्री बोर्ड है, अब आपके पास डिसीजन है, मेरे पास नहीं है. अब नाउ माय कोर्स इज ऑलमोस्ट कंप्लीट. तो अब आपको सोचना है कि मुझे कितनी अब स्टार्ट करना है. हाउ मच इन ईच सब्जेक्ट, इन ईच टेस्ट आई हैव टू परफॉर्म. हाउ मच आई नीड टू गिव टाइम टू ऑल माय सब्जेक्ट्स. अब मैम ने बता दिया है कि 10th इज ओनली अ माइलस्टोन, लेकिन मुझे ऐसा लेना है. आई एम नॉट गोइंग टू से बेटा आप साइंस लो, आप कॉमर्स लो. आई एम नॉट गोइंग टू. ओनली दो स्टूडेंट्स हु कम टू मी फॉर काउंसलिंग and they take a proper counseling test, उनको मैं suggest करती हूँ, but we never impose, because I'm not the one who can impose take science. मैंने तो अपनी daughters को कभी नहीं कहा था. तो I cannot say कि science, क्योंकि as a teacher I don't believe a science student is more intelligent or a commerce student is less intelligent. मेरी एक student थी सुरभि मित्तल, she was 100 marks in all the subjects till she is chartered accountant. तो ऐसा नहीं है कि बच्चा इससे इंटेलिजेंट होता है. एंड मार्क्स आर नॉट इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस इज हाउ यू डील विद योर थिंग्स. वो इंटेलिजेंस होगा.
So I'm not going to tell take science, take commerce. You are not fit for science, you are not fit for commerce. No, I'm sorry, I cannot say that. I can say you are fit for everything. You are fit for everything, but the only thing is you are fit. You. तो वो जो you हो उसको आपको बाहर आना पड़ेगा. Leave aside कौन सा टीचर क्या बोलने वाला क्या नहीं बोलने वाला. Make a timetable. Start your revision in a proper pattern. फर्स्ट प्री बोर्ड में तो आप लोग सब जो हो उल्टा लटक के रो रहे होंगे. I'll meet you after your first pre board results. आप देखना कितना रो रहे होंगे आप लोग. मैम ऐसा तो हमने नहीं किया था, टीचर ने तो बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग कर दी, मैम बिना बात के मार्क्स काट लिए हमारे, मैम हमने तो बिल्कुल ठीक लिखा था, हमारे फ्रेंड ने भी यही लिखा था, उसके ज्यादा आ गए. बड़े सारे ऐसे आंसर्स आएंगे. तो फर्स्ट प्री बोर्ड में तो आपको झटका लगेगा ही लगेगा. बट if you are ready with everything, keeping a check, notes आपके पास है हर सब्जेक्ट के, पढ़िए. क्वेश्चंस है, सैंपल पेपर्स है, आपको मैं पेपर्स दे रही हूँ, असाइनमेंट्स दे रही हूँ. इन केस यू आर नॉट एबल टू कभी आप असाइनमेंट को नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, नहीं आपने अटेंड किया था, आप असाइनमेंट को जनरल में करिए बैठकर. आपके असाइनमेंट में मार्क्स कम आए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा उस असाइनमेंट को करके देखिए. सो यू विल बी एबल टू score well. And then decide. I always say whatever you do by choice, not by chance. मजबूरी में मत करना, जो करना है सोच समझ के करना, with grace accept करना. And this is what I want to tell in today's session. If any one of your friend, parent, anyone wants to have any interaction, मुझसे पूछना चाहते हैं, you all are always welcome on the WhatsApp, because you know that I have the continuous class, so normally I don't take the call immediately. You can drop me a message, I can help you out. If you want anything else, मतलब कि कहाँ आपको कोचिंग लेनी है, क्या लेना, कुछ भी आपको आगे पूछना हो, I'm always there. But from today, make it sure you are prepared for your future. Your pre-boards are only the first step. लेकिन अगर आप फर्स्ट स्टेप को सही रखोगे तो आप ऊपर तक पहुंचोगे. पहली सीढ़ी में ही नीचे गिर जाओगे तो आपको ऊपर चढ़ते हुए डर लगेगा, है ना. अगर मान लो मैं ऊपर चढ़ रही हूँ और अब मैं अंधेरे में ऐसे करके पैर रख रही हूँ और मैं नीचे गिरूंगी तो फिर क्या होगा, मेरी हड्डी टूटेगी और प्लास्टर चढ़ेगा और क्या होगा. लेकिन अगर मैंने ध्यान से सोच समझ के किया है तो मैं ऊपर भी प्रॉपरली चढ़ पाऊंगी. सो दिस इज मी हु हैज टू लुक इनटू. तो अंधेरे में तीर मत चलाइए. डोंट थिंक आई विल एंड आई डोंट वांट एनीथिंग. सी बेटा, मेरे पास अगर 2 बच्चा होगा या 20 होगा या 200 होगा, my aim is my students should be placed well in their life, not streams. Because I don't judge anyone by their streams they have taken. Streams are only one pastime. My elder daughter is from humanities. She is very well placed in a very, very big industry. TJ Maxx, which is US, बहुत बड़ा brand है वहाँ का, and she is there as a senior manager at a very good post. She was a school topper of LPS. कोई भी जाकर पूछ सकता है. रिचा राघवन. रिचा राघवन का मतलब ही होता था, आज भी she is one of the alumni. रिचा राघवन मतलब ही लोग डरते थे. कल भी उसने हॉस्पिटल में कॉल किया तो छोटी बहन की फ्रेंड्स डर गए, भाई तेरी बहन तो बहुत डरावनी है. she had the leadership quality, और उसकी लीडरशिप क्वालिटी ही है वो जो आज मैनेजर पोस्ट में है. छोटी वाली को हमेशा डॉक्टर बनना था, किसी ने बोला नहीं था उसको. हमेशा उसने इनफैक्ट बचपन में आके मुझे बोलती थी, मम्मी मैं डॉक्टर कैसे बनूंगी. तो आई यूज्ड टू गिव हर अ वेरी लॉन्ग वर्ड. मैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट थी एंड वो लर्न करने के बाद कहती थी अब मैं डॉक्टर बन गई. तो उसका अपना था. एंड वॉट एवर शी इज डूइंग ऑन हर ओन, वो जो कर रही है. तो बेटा, करियर इज नॉट ह्यूमैनिटीज और करियर इज नॉट, आई नो कोई भी प्रॉब्लम आएगा ना, रिचा राघवन के सामने कोई प्रॉब्लम नहीं रुकता. मेरे सामने तो प्रॉब्लम ऐसे खड़ी हो जाती हैं जैसे कि उनको मतलब कि मैंने अपने घर में बुलाया हो, बेटा आओ आओ मुझे परेशान करो, मुझे रुलाओ थोड़ा. दिस इज वेयर वी स्टैंड.
मी एंड माई हस्बैंड आर फॉर कॉमर्स, नो डाउट। मैंने बाद में जो है मैंने बीएड कर लिया था तो मेरा बिल्कुल अलग हो गया था, पॉलिटिकल साइंस भी आ गया था, एमबीए किया था तो कॉमर्स भी आ गया, एंड डॉक्टरेट तो इन कॉमर्स ओनली। बट दोनों डॉटर्स बिल्कुल अलग है। तो योर स्ट्रीम्स विल नॉट डिफाइन व्हाट यू आर, योर लाइफ विल डिफाइन व्हाट यू आर। आप कुछ भी कर रहे हो, यू आर अ टीचर। टीचर कौन अच्छा होता है? कौन से टीचर को आप अच्छा बोलोगे? एक टीचर आप उससे बोलो सर आप मेरे को थोड़ा सा ये उसका नाम क्या x प्लस वाई स्क्वायर बता दो, वो कहता है अच्छा बेटा लाओ रुको मैं 1 मिनट, हाँ हाँ हाँ, तो क्या पूछा बेटा आपने? उस टीचर को अच्छा बताओगे या फिर आपको ऐसे बोलो ओ x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होता बेटा आंसर, उसको आप अच्छा बताओगे। अ टीचर इज हु टीचेस फ्रॉम योर हार्ट। तो whatever you take, you should be perfect। आपको बाद में ना ये नहीं होना चाहिए यार मैंने कॉमर्स नहीं लिया, मेरे उस फ्रेंड ने कॉमर्स लेकर ना देखो कितना अच्छा कमा रहा है, वो फोटोग्राफी कर रहा है, इवेंट मैनेजमेंट ले रहा है, बट देन आल्सो ही इज अर्निंग लॉट। टुडे वी हैव लॉट्स ऑफ स्कोप्स, स्कोप्स को हमें फाइंड करना होता बच्चे। बट एट दिस लेवल इन क्लास 10th आपको जो है सबसे पहले जो करना वो ये है कि आज से एक टाइम टेबल बनाओगे, टाइम को नोट करोगे। आप स्कूल से आए 10 मिनट खाना खाया, 10 मिनट मतलब 10 मिनट होता है, 10 को 20 मिनट मत करिएगा। अब दिसंबर, क्योंकि कल दिसंबर 1 है तभी मैंने आज रखा ये काउंसलिंग, दिसंबर जनवरी, बस आपके पास 2 महीने हैं, 5 दिन 5 सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम रोज देना है। आज मैथ्स को दिया, कल साइंस को दिया, कल परसों इंग्लिश को दिया, फिर एसएसटी को दिया, फिर कंप्यूटर को दिया, फिर बाकी जो 2 दिन है सेल्फ अपने आप को रेगुलेट करो। जो आपके ट्यूटर्स या स्कूल में जो मतलब आपको पढ़ा रहे हैं वो एक अलग है, आप अपना एक बनाओ। डोंट थिंक आई विल डू इट इन दैट स्टेज, अगर आप अभी नहीं करोगे तब भी नहीं कर पाओगे। स्टार्ट टुडे, राइट नाउ, मेक अ प्रॉपर मतलब कि एक रखो। आई हैव ऑल्सो मेड माई स्केड्यूल, आप लोगों को कैसे कैसे करवाना है, क्या करवाना है, आई हैव माई, आप भी करो, रखो, keep it, ask your parents, they might have kept a diary for budget, they might have kept diary for different things, उनके दिमाग में कितनी चीजें चलती हैं मम्मियों से पूछो। the best timetable is mothers, सुबह उठ के ये भी करना वो भी करना वो भी करना और सब काम उनके परफेक्ट हो जाते हैं। how, this is how we have to। तो अपना एक टाइम टेबल बनाइए, स्केड्यूल बनाइए, कहीं पर चिपकाइए, जहां पर भी आप पढ़ते हैं उसके सामने अच्छे अच्छे कोट्स रखिए, अच्छे अच्छे पिक्चर्स रखिए कि कौन सा मतलब की है, रोज मोटिवेशनल कोट्स पढ़िए रोज सुबह उठकर। किसी दिन मार्क्स कम हो गए तो डोंट बिकम मतलब कि अपसेट, ये थोड़ा सा अपसाइड डाउनसाइड रहेगा, भूख कम लगेगी या भूख बहुत ज्यादा लगेगी, फ्रेश फ्रूट्स खाइए, बाहर की उलूल जुलूल चीजें मत खाइए। वहां गए थे उसने चिल्ली पोटैटो खा लिया, ये खा लिया वो खा लिया, बेटा चिल्ली पोटैटोज आपको जो है चिल्ली पोटैटो बना के रख देंगे, पूरी नाक आपकी ऐसे हो जाएगी बस। तो प्लीज ईट फ्रेश, टेक एम्पल, हेल्थ के लिए अपना केयर रखिए, सोना बहुत जरूरी है। मुझे कोई नहीं सुनना चाहिए कि हम रात को 2 बजे तक पढ़ रहे थे, कोई जरूरत नहीं, 11 11:30 उसके बाद बंद। एंड हफ्ते में एक दिन 100% हर बच्चे ने एक मूवी देखनी है। यस, यू नीड टू रीजेनरेट योरसेल्फ, ये बहुत जरूरी है। इफ यू थिंक मेंटल हेल्थ इज मोर, अगर आप 2 महीने अपने में, आप ये सोचो आपने पेट में सिर्फ आप खाना डालते गए, बाहर नहीं निकला, फिर क्या होगा? सोचो आपके पेट का हाल क्या होगा। तो यही हाल हमारे दिमाग का भी होता है। तो प्लीज कीप इट वन, एक कोई 2 घंटा निकालिए जिस दिन आपके पास टाइम है, कोई भी हल्की फुल्की मूवी जो आपको पसंद हो, नॉट दैट एक्शन एंड ऑल नहीं, जो आपको पसंद हो वो आप देखो जिससे कि आपको अच्छा लगे। मैं तो देखो भाई बहुत सॉफ्ट मूवीज देखती हूँ, सिंपल है, मैं हफ्ते में एक दिन जरूर देखती हूँ, 200% देखती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत 1950s की मूवी देखी थी एंड माय डॉटर्स वर लाफिंग कि मम्मी अब आपको ये अपनी दादियों के जमाने की मूवी क्या देखने की जरूरत है, मैंने कहा अच्छी लगी देखी मैंने। देखो, कीप योर सेल्फ ऑन द ट्रैक, और थोड़े टाइम के लिए
अपना स्नैपचैट, इंस्टा, इन सबको थोड़े दिन के लिए, अगर आप थोड़े दिन के लिए स्ट्रीक नहीं बनाओगे तो स्ट्रीक्स कहीं नहीं जाएंगे। थोड़े दिन के लिए अगर आपने इंस्टा पे रील नहीं बनाया तो भी रील वहीं रहेगा, ठीक है ना। तो थोड़े टाइम के लिए इन चीजों को करटेल करो, बट एट द सेम टाइम एंटरटेनमेंट इज वेरी नेसेसरी, but it should not be entertainment and entertainment. It should be study and entertainment, right? So with this, I'll end up this session. Thank you very much for being with me, but if you have any doubt, I'm there with you 200%, 24/7.